हेलो एंड वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ एक्सपर्ट टॉक्स एट टैब.ai। आज हमारे साथ है सौरभ, जो कि एक रिएक्ट डेवलपर हैं। उनको 4 साल का एक्सपीरियंस है। हाय सौरभ, Hi, कैसे हो? good. तो बताओ अपने बारे में कुछ हमारे व्यूअर्स को। I have 4 years of experience in front-end development. I started as a front-end developer initially. Previously, had experience with few of the startups. Then worked with uh, MNCs. And again, joined a startup. Freelancing का भी experience है. So I was not niche into React, but mostly started with JavaScript because उस समय बहुत peak पे था, jobs का requirement ज़्यादा थे तो went through JavaScript, फिर then different libraries like React.js, Next.js, TypeScript, mobile app development, React Native, backend Node.js, Express.js. So mostly you can say JavaScript के ecosystem पे I'm more comfortable exploring new things currently as ओके the experience prevails. So yeah, that's it. ओके, नाइस। सो हाउ यू गॉट इनटू लाइक रिएक्ट, मतलब क्या आपको How क्या did I got किक, into हाँ, React? किक मिलता ना स्टार्टिंग में कि यार ये करना है, रिएक्ट ही करना है? Honestly ऐसा कुछ था नहीं. I was not exploring कि initially in my colleges I was more into Java ओके because that is what we were taught and that is what the paradigm is कि Java कर लो, C++ कर लो and things. So उस समय Java करते थे and then DSs and all. यस यस। But then internship का टाइम आया तो गॉट टू नो कि जावास्क्रिप्ट का हाइप है थोड़ा, जावास्क्रिप्ट पे थोड़ा सा ज़्यादा लोग को अपॉर्चुनिटीज प्रिवेल हो रहे हैं और मिल रहे हैं. सो लर्न जावास्क्रिप्ट. सो आई स्टिल रिमेंबर आई स्टार्टेड लर्निंग जावास्क्रिप्ट and in a week I got an internship. So it was ओह very नाइस। वो उस समय बहुत पीक में था 2020 में आसपास. यस So यस यस। उस समय फर्स्ट जॉब वाज a startup. I was the only front end developer and then there was a back end developer and there was a co-founder. That eventually got closed but learned a lot from that product. तो वहाँ से फिर then went to MNC. So ऐसा कुछ था नहीं कि रिएक्ट ही करना. It was just that industry demand और ओके समझ में आ गया कि how things are built. Easy था थोड़ा to pick it up. So went it. ओके, नाइस। तो अभी बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि उतना कुछ खास सोच के नहीं किया था, यू गॉट इनटू थिंग्स। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट आपका कैसा था, मतलब उसमें चैलेंजेस वगैरह कैसे? See, initially I was a beginner, na, यस। very intermediate kind of. So intermediate नहीं, I'll say beginner only. तो उस समय I did not had any experience actually in that startup. So I used to work 10, 12 hours approximately. And then I was direct in touch with the co-founders. So I was very much niche to what the mindset is, what they want from me. And also feedbacks मिलते थे, बहुत harsh feedback मिलते थे. There were tasks जो कि 8-12 घंटा लगने नहीं चाहिए थे initially, but I took sometimes 10 hours, sometimes 12 hours, and they were kind of की release करना है. You have to be pushing yourselves, push your limits, responsibilities उठाओ वगैरह वगैरह. सो तो वहाँ पे थोड़ा सा हमको रश करना पड़ा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम्स इन्वेस्ट करना पड़ा. एंड देयर इज नथिंग लाइक कि रिएक्ट से स्टार्ट किया था, बट देन अगेन व्हेन आई स्विच्ड, fortunately I was not into unfortunately I was not into React only. I got opportunities with Angular and Spring Boot. तो वहाँ पे एज अ फुल स्टैक काम किया विद स्प्रिंग बूट, जावा स्प्रिंग बूट. एज जावा में पहले से एक्सपीरियंस था ही तो, एंड देन एंगुलर, टाइप स्क्रिप्ट फिर वहाँ से लर्न किया, फिर अगेन बैक टू रिएक्ट. सो वो उतना स्वैप्स में उतना दिक्कत नहीं है क्योंकि आई ऑल्सो यूज टू डू फ्रीलांस वर्क्स. सो रात के टाइम पे फ्रीलांस स्टफ्स डाल देते थे, उनके काम करते थे. तो इसलिए तो यहाँ के जो लर्निंग्स था उसके जो फर्स्ट मेरा प्रोडक्ट बेस्ड जो था बैंगलोर का था, एक्चुअली वेरी स्मॉल कंपनी, ऑगमेंटेड रियलिटी पे था वो, ए आर. उस समय था, दे थॉट इट वुड वर्क, आई ऑल्सो थॉट इट वुड वर्क, बट इवेंचुअली वो फंड्स नहीं उठे एंड देन दे एंडेड अप क्लोजिंग इट. तो लर्निंग्स ऑफ कोर्स, सेशंस होते रहते थे बाय द को फाउंडर इज हिमसेल्फ इज इन अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन. He is in a very good position as well. So unke lessons I still remember. I am still in touch with him. He still pings me out कि if I have something else, would like to borrow some help. कैसा कर रहा है, क्या है क्या नहीं. So that relation is built good. वहाँ से थोड़ा सा बैक एंड का भी आइडिया मिला कि हाउ स्ट्रक्चर्स आर मेड, हाउ आई शुड प्रोसेस कम्युनिकेशंस के थ्रू. सो द फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट जॉब, be it a startup, was very helpful.
अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट वाइज पे। सही है। तो मतलब आपको 4 साल का एक्सपीरियंस है हाँ। ना? तो मतलब आपको कैसा लगता है कि मतलब क्या क्या आप में चेंजेस आई आप इन स्किल्स मतलब रिएक्ट में डेवलपमेंट में प्रोसेस भी आपका चेंज हुआ होगा काफ़ी। पहले आप अलग तरीके से करते होंगे, हाँ, अब चीज़ें चेंज होगी। see when there are seniors around, they suggest ki how things are done, and when you keep on constantly exploring things, right, so you'll always get a better approach of doing one particular task every time. एग्जैक्टली। So even now, even any developer will relate. If they look at the initial code na, they'll think of how, why did I write this, और ऐसा ही क्यों लिखे हैं, इतना खराब क्यों? So that is initially उतना ही आता था वैसा लिखे, and then eventually learned, explored, advanced the skill sets. और रिएक्ट में एक्चुअली में आप एक सेट के आने के बाद यू विल बी स्टैग्नेंट कि हाँ इतना ही है, अब इससे ऊपर क्या है, देन यू विल हैव टू एक्सप्लोर अ बिट फर्दर ऑन एप्लीकेशन लेवल. So the current experience I have, that does not demands to have more of a library or framework knowledge that you can grab within a week or two, rather to have a bigger aspect of an application, how to scale, how to build a profound and very easy to use application, how to scale an application on big aspects. That is what my responsibility here in the organization is also. So I focus on those things currently more often. नाइस नाइस नाइस। तो जैसे कि आप अभी रिएक्ट कर रहे हो ना, Mm-hmm. व्हाट आर योर गो टू टूल्स जो रिएक्ट इकोसिस्टम में आपके यूज होते हैं? Go to tools as in libraries you're asking? लाइब्रेरीज एग्जैक्टली। Depends upon the project. Mostly we use Redux or for state management. We use basically RTK query we use entirely for state management and API calls, network calls. And then there are custom codes that we write. TypeScript is there. Tailwind यस। is major use. Currently, we have been using SADSIN a lot. SADSIN provides a good custom code to us for every component, and we can customize it. So SADSIN hai. Initially, we also explored Justin in one of the projects. So libraries आते हैं जाते हैं, so we start using it और देखते हैं कौन सा fit बैठ रहा कौन सा project पे. Every project is not similar, यस so यस we यस। need to check it out कि कौन सा stack. It's not also React every time. Depends upon कि नेक्स्ट पे जा रहे हैं, एंगुलर पे कर लेना चाहिए. रिएक्ट सो रिक्वायरमेंट क्या है प्रोजेक्ट की, है ना? करेक्ट. सही है सही है। तो अब जैसे आप रिएक्ट कर रहे हो काफ़ी टाइम से, आपको टाइम हो गया है, तो अभी भी आपको मतलब रिएक्ट में ऐसा क्या चीज़ एक्साइट करती है कि यार बढ़िया है, बाकी उससे डिफरेंट क्यों है हाँ, वो? बाकियों से डिफरेंट है. इट हैज़ अ बैक ऑफ अ वेरी बिगर ऑर्गेनाइजेशन. इफ यू सी बैक बाय डेव कम्युनिटी बहुत बड़ा है. रिलीजेस विथ न्यूअर फीचर्स आते रहते हैं. करेंटली रिएक्ट 19 केम अप विथ गुड फीचर्स रिलीज. एंड अगेन वो you can build bigger applications if you see you're using daily applications that are built on React. So easy to use for developers, easy to understand now since it has been quite a long in the industry for now. तो अब आसान हो गया सबको समझने के लिए क्योंकि बाकी लोग भी समझ चुके हैं कैसे काम करता है. तो अब लोग समझाने वाले बढ़ गए हैं. इनिशियली जब कोई चाहता है तो समझाने वाले लोग कम रहते हैं, तो स्ट्रगल होता है उसको समझने में. वंस इट्स ओल्ड एनफ तो फिर आपको समझ में भी आने लगता है. 10 डेवलपर्स के लिए भी फ्रेंडली है और एप्लीकेशन बनाने के लिए फ्रेंडली है. अपॉन विच नेक्स्ट.जेएस विच इज अ बिट मतलब थोड़ा सा वो वेरी करता है. उनके बहुत ज़्यादा ही रिलीज आते हैं, उतना स्टेबल भी नहीं रहते. बट अगेन दे आर नीश केसेस जिसमें नेक्स्ट.जेएस बहुत प्रेफर किया जाता है. ऑल्सो वी यूज नेक्स्ट.जेएस अराउंड. तो इसके अपने पर्क्स हैं रिएक्ट के, लाइक कंपोनेंट ड्रिवन है, वर्चुअल डॉम सपोर्ट करता है, परफॉर्मेंस वाइज आप इसको बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हो, डेवलपर फ्रेंडली ऑब्वियसली, डेवलपर कम्युनिटी बहुत बड़ा है. सो यू डोंट लाइब्रेरी सपोर्ट बहुत सारे हैं. सो इट्स जस्ट दैट कि आप कहीं फंसते नहीं हो. यू डोंट गेट स्टक एट सर्टेन पॉइंट. आपको कोई ना कोई सॉल्यूशंस मिल ही जाता है. पहले बिल्ट है, लाइब्रेरी इतने सारे हैं. सो इट्स फास्टर टू बिल्ड एप्लीकेशन. सो दैट इज वाई अभी उसका यूज भी बहुत बढ़ गया है. एंड देन इट विल इंक्रीज इवेंचुअली. वो तो होगा ही बिकॉज डेवलपर कम्युनिटी इसका बहुत बड़ा है. तो दैट विल हैपन विद एनी टेक स्टैक, एनी लाइब्रेरी, एनी फ्रेमवर्क मे इट बी. ओके नाइस। तो ये तो जी चलो आपके रिएक्ट की बात, आपका बैक जो भी स्टोरी है वो क्या थी।
तो हम इस बारे में बात करते हैं, लाइक एज मच एज आई नो, आप tab.ai के लिए मेंटोरशिप भी हाँ, यस। करते हो, है ना? तो हमारे काफ़ी व्यूअर्स हैं जो जानना चाहते हैं कि मेंटोर कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि पहले के टाइम पे तो मेंटोरशिप मिलना तो हुँ, वैसे हुँ। नहीं मिल पाती थी, हुँ, हुँ। किसी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ले लो, हुँ, ये हुँ, कर हुँ। लो, वो कर लो। अब जैसे आप कर रहे हो, हुँ, तो हुँ। मतलब आपका क्या ट्रांजिशन था एक डेवलपर से एज ए मेंटोर As a बनना? mentor, यस। the co-founder of Tab, Pooja, she approached. Also, we have few managers around. They approached to be the mentor. So initially, we planned the course in a way that a beginner, intermediate, both can relate to, and they can grow to an advanced level. Since I have been doing React since from early days, तो आई नो कि हम कहाँ फंसते थे, कहाँ पे उनको दिक्कत आ सकते हैं. So we planned the course, we revised it, we then are doing it better and better, and then we planned a end product that we'll be building in the entire course. So there's an e-commerce platform that we'll be building throughout the course, and each task and module at the end relates to the e-commerce platform. So once you end, you will have your own e-commerce platform built by yourself. So that was it, and the opportunity was great. So I was not in a state to say no. It would be a very foolish thing to say no to such an opportunity. So it's a great learning though for me as well. When you teach, you get to learn new things. So initially, in my initial couple of months, I learned it was an extra effort going back home, looking into things, preparing classes, preparing the sessions. क्योंकि live sessions होते हैं, Yes. and then they also interact, they also counter question, and then you'll after the session also you get to sit with the students for their queries. So was learning, was a great experience, happening to be a great experience. It's ongoing. ओके, तो मतलब लाइक जैसे कि आपने खुद बताया, बिगिनर, इंटरमीडिएट, वैसे वैसे कुछ हर स्टूडेंट जो होता है एक टाइप का नहीं होता है Correct. ना? तो Mhm. मतलब उसको आप आपका क्या अप्रोच रहता है कि मतलब सबको कैसे सिखाएं, So the कैसे process we do is first हम लोग ना एक assessment call लेते हैं. That is just an assessment call. Like कि आपको कितना आता है, करियर में क्या करना चाहते हो. So we suggest कि क्या कोर्स लेना चाहिए, कैसा कोर्स लेना चाहिए, according to their current goal and situation. कि कितना आता है, कितना नहीं आता है, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कैसे. तो वी फर्स्ट एनालाइज. तो वो जो 15-20 मिनट का हम लोग का कॉल होता है ना, वेरी फ्रेंडली कॉल. समटाइम्स दे थिंक कि इंटरव्यू वगैरह है. इट्स नॉट लाइक दैट. मतलब वो बहुत ही फ्रेंडली कॉल होता है, बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही अच्छा कॉन्वर्सेशन करते हैं हम लोग कि क्या आता है, क्या नहीं आता है, क्या पढ़े हो, क्या करना चाहते हैं. एंड देन वी सजेस्ट कि हाउ कैन वी हेल्प, आप क्या कोर्स कर लो. बिकॉज it's not only about the course, we also give interview preparation. So mock interviews are 5, and also we help to crack interviews. So it's not only about the course, you do the course, you learn the concepts, and then there are live sessions happening, and there are direct contact with the mentor. So आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हो. इवन आफ्टर द कोर्स वी हैव अ डिस्कॉर्ड चैनल, आप वहाँ पे क्वेश्चंस पुट ऑन कर सकते हो. So there are, the goal is to make it larger with more and more of students involved, more and more of developers involved. जितने लोग होंगे, जितने टॉक्स होंगे, जितने सिनेरियोज होंगे, जितने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हम सॉल्व कर पाएंगे, उतना अच्छा इवॉल्व होके आएंगे. सो दैट इज व्हाट द मेन गोल इज. तो उसके लिए वी नीड टू फर्स्ट एनालाइज कि स्टूडेंट का करंट सिचुएशन कैसा है. मतलब कि वी डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम. So अगर already you are above beginner, we'll never suggest you to go with beginner. Directly go with the intermediate course. Directly come to React. You're good with JavaScript, great. We don't want to teach you JavaScript now. We'll directly go to React. Come learn React, explore React with us. Also in the course also we don't do regular stuff. जैसे कि होते हैं ना, to do बना दिया वगैरह वगैरह. We actually do. We will actually build React from scratch. As in वो बिल्ड टूल्स वगैरह यूज करके रिएक्ट का बॉयलर प्लेट लगा लिए, वैसा नहीं करते हैं. वी एक्चुअली बिल्ड टूल्स फ्रॉम, बिल्ड द एंटायर प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच. फोल्डर्स अपने बना रहे हैं, फोल्डर स्ट्रक्चर समझा रहे हैं, कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, कौन सा फाइल कहाँ पे है, क्यों है, किस जगह पे क्या स्टैंडर्ड लिखे हैं, क्यों लिखे हैं, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट आर द पर्पस ऑफ ईच एंड एवरी फाइल. पैकेज और जेसन का क्या पर्पस है, मॉड्यूल बंडलर्स क्या होते हैं, लॉट ऑफ स्टफ्स.
Once you join, you can, there's also demo class we offer, so you Okay. can take the demo classes and then you can take the decision. Okay, nice, good insights. Mhm. तो मूविंग फॉरवर्ड ये बताओ कि लाइक जैसे आपने अभी मेंटोरशिप का बता दिया, Mhm. तो मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जैसे पहले के टाइम पे उतना मेंटोरशिप नहीं होता Mhm. था, ना ही यूट्यूब Mhm. वगैरह इतना होता था। Mhm. आजकल तो यूट्यूब पे भी बहुत कुछ मिल जाता है, Mhm. तो डिफरेंस क्या है मतलब लाइव Mhm. मेंटोरशिप लेने का? मतलब एज मच एज Mhm. मच एज आई नो कि जो आपका ये कोर्स है ये मतलब ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड रहेगा या Correct. कुछ ना, लाइव Correct. रहेगा, सब कुछ Mhm. लाइव रहेगा। आपके वन ऑन वन सेशंस भी होते हैं। Correct. तो मतलब क्या डिफरेंस है यूट्यूब से सीखने में और ये सीखने में यहाँ से? दी मेजर डिफरेंस इज यूट्यूब से आपका जो वीडियोस हैं आपके पास, यूट्यूब से आप देख रहे हो, आप सीख रहे हो, बट द क्वेरीज आर नॉट रिजॉल्व मोर ऑफन। कहीं ना कहीं फंस जाते हो, लाइक एग्जैक्टली। 2 घंटा का वीडियो है, 3 घंटा का वीडियो, आई हैव फेस दिस कमिंग 1 आवर डाउन द लाइन। अब वो कुछ ऐसा यूज कर रहा है जो हम यूज नहीं कर पा रहे हैं या फिर यूज कर नहीं सकते, एंड नाउ ही इज स्किपिंग इट, क्योंकि अब उसके पास भी उतना टाइम नहीं है कि वो आपको वीडियो में बैठ के बताए। नाउ यू आर स्टक देयर, यू आर नॉट एबल टू गो फॉरवर्ड। हम लोग के साथ क्या है, वी डू लाइव सेशंस, वी डू 1 to 1। आफ्टर द सेशन क्वेरीज होते हैं हर एक स्टूडेंट के साथ, एवरी स्टूडेंट इज एलोकेटेड अ मेंटर, दे कैन बुक दी 1 to 1, एंड देन वो क्वेरीज होते हैं, क्वेरीज रिजॉल्व होते हैं। स्टार्टिंग न्यू सेशन से पहले जो प्रीवियस सेशन में जो जितना भी कॉन्फ्लिक्ट्स है, जितने भी इश्यूज हैं, वो रिजॉल्व करके एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। तो वो जो क्वेरीज हैं उनके, जो डायरेक्ट अप्रोच के साथ, डायरेक्ट कनेक्ट के साथ, मेंटर के साथ वो रिजॉल्व होता है ना, और वो जो समझते हैं बाय हैंड एट द पॉइंट, वो ज़्यादा इफेक्टिव हम लोग को लगता है मेनली। और ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड सेशंस नहीं है, जो लाइव सेशंस हैं वो रिकॉर्डेड भी मिलेंगे आपको, और जो लाइव सेशंस में जितने भी चीज़ें हम लोग पढ़ा रहे हैं उसका पूरा स्क्रिप्ट भी मिलेगा आप लोगों को। फॉर एग्जांपल जितने भी कोड स्निपेट्स वगैरह हम लोगों ने यूज़ किया, सारा कुछ टैबलेट एआई के एप्लीकेशन पे, आप वहाँ पे आप एक बार कोर्स लोगे, यू विल साइन अप, यू लॉग इन, वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। यू कीप कंप्लीटिंग योर टास्क, द फर्दर टास्क विल बी अनलॉक्ड, और आप ऐसे करते जाओ, और प्रीवियस टास्क यू कैन विजिट एनी टाइम। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग कर चुके हो लाइव सेशन तो आप नहीं विजिट कर सकते, यू कैन विजिट देम एनी टाइम। रिकॉर्डेड सेशंस भी रहते हैं, जो लाइव हो चुका है उसका रिकॉर्डेड सेशंस, एंड द एंटायर कोर्स का कंटेंट वी प्रोवाइड देम एज वेल। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा add-ons we give. Also, like for example, there are videos 2 to 3 years back. Now React is evolving, Next is evolving, the entire industry is evolving. तो हम लोग का क्या है कि when you are doing live sessions, we keep ourselves updated with the current stack, current latest updates. तो उसके बेसिस पे भी डू दी प्रोजेक्ट, उसके बेसिस पे भी अपग्रेड दी प्रोजेक्ट, भी अपग्रेड दी कोड। अब वो 3 साल पहले का कोड यू कैन लर्न, यू कैन डू थिंग्स अप, बट वो अभी काम आएगा नहीं आएगा, बिकॉज सी, taking next as an example, primary example, every year they release a new, they push a new release, right? So अब आप 12 13 कर रहे हो, of course you can, और ऐसा कुछ नहीं नहीं कर सकते हो, बट अगेन 14 15 के लिए अगेन दूसरा देखो, समझो कि पेज राउट क्या होता है, ऐप राउट क्या होता है, क्या डिफरेंस है, कैसे। हम लोग में थोड़ा सा वो आपको बेयर रेयरली, मतलब बेयर हैंडेड मिल जाता है बहुत इजीली। Secondly, you can directly ask questions to the mentor, जो भी issues है that will be encountered then and there, clear भी हो जाते हैं, नहीं भी होते तो you can go for 1 to 1s। so थोड़ा सा easy हो जाता है for any student to rely, और वो ट्रस्ट फैक्टर थोड़ा सा बढ़ जाता है हम लोग के लिए। ओके, नाइस। तो मूविंग फॉरवर्ड एक चीज़ बस हमारे व्यूअर्स के लिए हम्म। मैं पूछना चाहूँगा कि लाइक काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो अभी कोर्सेज ढूंढ रहे होंगे या कुछ भी कर रहे हाँ होंगे। हाँ। कुछ लोग कंफ्यूज भी होता है कि क्या करें, हम्म। कुछ तो मतलब कॉलेज प्लेसमेंट्स पे भी होते हम्म। हैं। तो अब वही है कि मतलब वो कैसे डिसाइड करें, उनका कंफ्यूजन कैसे मतलब दूर होगा कि कहाँ जा। आपको भी अपने टाइम पे आए होंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई होगी सोचने में या डिसाइड करने में, तो उनको क्या इट्स करना ऑलवेज गुड चाहिए? टू एक्सप्लोर। यस। आप यू कैन एक्सप्लोर अराउंड, आप देख सकते हो, यू कैन, until unless you take a session, until unless you join the session, you'll not be able to rely on कि कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। also the course का जो pricing है is not very high, it's very low, it's very much pocket friendly for everyone। तो वो आप एक बार डेमो क्लासेस लोगे, आपको समझ में आएगी क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसा पढ़ाया जा रहा है, कितना डेप्थ में पढ़ाया जा रहा है, हाउ प्रैक्टिकल इट इज। ऐसे सिर्फ नॉर्मल यूट्यूब वीडियोस जैसा नहीं है। सो देन यूल गेट टू अंडरस्टैंड कि कहाँ लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, एंड देन वी ऑल्सो ऑफर, एज आई सेड, दी
वो सेशंस दैट वी टेक, इनिशियल सेशंस, तो उस दैट ऑल्सो भी ऑफर, उसमें भी आप बैठ के बात कर सकते हो, व्हाट इज योर एंड गोल, व्हाट डू यू वांट टू बी, कहाँ लैंड करना चाहते हो, अकॉर्डिंगली वी अलाइन अ कोर्स फॉर यू. तो I won't say don't explore, but then you'll end up, once you come to us, you won't be disappointed. At least you will be ending up with good knowledge, good insights, good relation, and also the co-founders are very friendly. They sometimes themselves join and then interact with people, so that's good. Okay. It was really nice. It was really nice talking to you, सौरभ. बस एक लास्ट एडवाइस या टिप आप अगर कुछ देना चाहोगे तो आप दे सकते हो हमारे व्यूअर्स को. Tip as in as a developer? एज ए डेवलपर, एज ए मतलब अगर आपको किसी फील्ड में जाना है, मतलब किसी या फिर कोई जैसे फ्रेमवर्क चूज करना है, तो मतलब क्या माइंड में रखें? इट शुड बी क्लियर कि आपको करना क्या है. लाइक इट शुड बी वेरी मच क्लियर कि आपको एक्चुअली में डेवलपमेंट में अच्छा लगता है, फ्रंट एंड अच्छा लगता है, बैक एंड अच्छा लगता है, ऐप डेवलपमेंट अच्छा लगता है, वेब डेवलपमेंट अच्छा लगता है. Currently seeing the demand of the industry, AI is on to peak, so they should get, everyone have to get into AI. आपको रहना ही रहना है to keep your feet into the race, or else you will be thrown out. That's very much evident. Also आप देख, JavaScript is not that hard to learn. If you spend a week, so you'll be very much into an more than a beginner, and between beginner and intermediate, I would say at the peak of beginner level पे आप हो जाओगे कि आप you can build a very basic React application, and then once you start building, then you'll have confidence, then you'll learn more things. So it's always do more and more of projects. Don't wait for any job opportunities. Personal projects आप बहुत सारे करो, बहुत सारे प्रोजेक्ट आइडियाज हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है जो कि आप पर्सनली ऑब्वियसली बिल्ड है पहले से. यू कैन ऑल्सो डू द सेम, उससे आपको लर्निंग ही मिलेगी. once you start doing those projects, and then when you start evolving the stacks around कि और क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, और जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, द मेजर रीज़न, आई मीन यूजिंग रिएक्ट, क्यों यूज़ करें रिएक्ट, और रिएक्ट काम कैसे करता है, जावास्क्रिप्ट अंडर दी हैंड काम कैसे करता है, दैट इज इंपॉर्टेंट. वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट, वंस यू स्टार्ट गेटिंग इनटू दैट, सो वो जो इंटरेस्ट जगता है, देन यू विल योरसेल्फ बी वर्किंग pretty much good. I mean, you'll be working hard, you'll be working more than it is required, क्योंकि interest will be gained ना, वो raise होगा, then again that's the only process. आप ज़्यादा से ज़्यादा projects करो, आप Discord join करके रखो टैब के, वहाँ पे we discuss current tech stacks जो trending है, क्या अच्छा है क्या नहीं है, how can we do more of things with newer tech stacks होता है क्या. Nice. Okay, Saurav, it was really a good time with you. Same here, brother. Thanks for the insights. I hope हमारे viewers को काफ़ी answers मिल गए हों उनके Hope so. सवालों के. तो ये था हमारा एक्सपर्ट टैब पे एक्सपर्ट टॉक, जो कि जिसका 4th एपिसोड था. अब हम नया एपिसोड लेके आएंगे नए मेंटोर के साथ. बाकी कमेंट सेक्शन ओपन है, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप ड्रॉप कर सकते हो अपना क्वेश्चन. वन ऑफ आवर मेंटोर विल बी आंसरिंग यू द क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड. ऑल्सो आपने इन्होंने अभी बताया जो टैब के डिस्कॉर्ड वगैरह यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो easily. That we can add in the description. yes we can also add in the तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आपको ज्वाइन link करो. मिल जाएगा. बाकी मिलते हैं नए एपिसोड के साथ जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय.